Hello students, welcome to the new topic Q switching. So today we will deal with the topic Q switching. As in the last lecture we have learned the basic terminology like the peak power, that is P peak, P average, that is average power, peak power, pulse width, okay, repetition frequency, repetition frequency or repetition rate. So those term will be used in this Q switching while we are learning this Q switching. Okay, so first we will see that why the Q switching is used in lasers. So what are the applications of Q switching and what is the need for Q switching in the lasers? So we have learned the continuous wave laser and pulsed wave laser in yesterday lecture. Okay, so this Q switching arises from the requirement of the pulse laser source. Okay, so पल्स लेज़र सोर्स की जब रिक्वायरमेंट हुई तो क्यू स्विचिंग जो है वो एग्जिस्टेंस में आया. एंड द पल्स लेज़र सोर्स इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द लेज़र्स. सो पल्स लेज़र सोर्स जो है यानी कि लेज़र जो आउटपुट है वो हमें पल्स की फॉर्म में मिले. सो वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम, वो एप्लीकेशन है लेज़र का. ओके, so pulsed solid state lasers are among the most important and widely deployed commercial laser systems. So the laser system used in commercial purpose usually uh, used in the form of pulsed solid state lasers. So pulsed solid state lasers are very very important for the commercial purposes. Okay, for example, the NdYAG laser. NdYAG laser is the most important and popular commercial laser for applications such as marking, cutting, drilling, range finders and retinal surgery. तो जो NdYAG लेज़र है वो मार्किंग, कटिंग, ड्रिलिंग, रेंज फाइंडर और रेटिनल सर्जरी, इनमें जो है वो काम आता है NdYAG लेज़र. तो ये बहुत कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ होता है इसका. ठीक है, तो इन एप्लीकेशंस के लिए ड्यू टू द वाइड use of these pulsed laser, the pulse should be short. Okay, the short pulse is used for this type of commercial purposes. So the shorter the pulse, the better would be the result. So जितना pulse जो है वो short होगी उतना ही जो result है वो हमें अच्छा मिलेगा laser output. Okay, so Q switching is used to, so अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतना सब कुछ एप्लीकेशंस होने के बाद लेज़र का कि बहुत शॉर्ट पल्स लेज़र जो बहुत शॉर्ट पल्स की जो होनी चाहिए लेज़र आउटपुट होनी चाहिए. ठीक है, और इनका इतना यूज़ है पल्स लेज़र का, तो उस पल्स लेज़र के लिए ये क्यू स्विचिंग जो है वो की जाती है. सो व्हाट इज़ क्यू स्विचिंग? क्यू स्विचिंग इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी शॉर्ट पल्सेस. तो जो शॉर्ट पल्सेस हैं, वैसे तो हम पल्स लेज़र बना सकते हैं
but Q switching is used to produce very short pulses for these types of the applications. For these type of applications, Q switching जो हम कल भी हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि Q switching क्या है. So Q switching is used to produce very short pulses for these type of applications. So जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि Q switch हम why we use the Q switch, so then the answer will be that Q switching is used to produce very short pulses. Okay. Energy is stored in the population inversion until it reaches a certain level, and then it is released very quickly in a giant pulse. So the energy is stored in laser in population inversion. In population inversion condition, the energy is stored, and when it reaches a certain level, then it is released, and very quickly it form a giant pulse. Okay. इसका मैंने आपको कल एक एग्जांपल भी बताया था, फिर मैं अभी आपको इसको डायग्राम में भी आगे बताऊंगी कि कैसे हम सिंपल लेज़र आउटपुट से जाइंट पल्स जो है वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं. ओके. सो हेयर व्हाई वी यूज द क्यू हेयर. यहाँ पर हम क्यू स्विचिंग की बात करें तो ये क्यू क्या है यहाँ पे. ओके. सो द क्यू स्टैंड्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ द रेजोनेटर. For the quality of the resonator. Okay. So the Q stands for the quality of the resonator. So resonator की quality से ही इसका नाम पड़ा है Q quality. तो ये Q ले रखा है. Okay. This Q. So this Q is used there, and a high Q resonator is a high quality resonator or one that has low loss. ओके. सो हाई क्यू रेजोनेटर जो होगा वो क्या होगा, जिसकी की हाई क्वालिटी रेजोनेटर. हाई क्यू रेजोनेटर इज अ हाई क्वालिटी रेजोनेटर. ओके. एंड हाई क्वालिटी रेजोनेटर क्या होता है, वन दैट हैज लो लॉस. तो ये याद रखना, जिसके लिए क्यू अगर हाई है तो लॉस क्या होना चाहिए वहाँ पे, कम होना चाहिए. और अगर क्यू जो है वो लो है तो लॉस क्या होगा वहाँ पर, ज़्यादा होगा. ओके. सो अ रेजोनेटर विद अ ब्लॉक्ड मिरर. तो ये जो रेजोनेटर है वो बनाया कैसे जाएगा, ये क्यू स्विचिंग जो है कैसे की जाती है. अगर हम ऑप्टिकल रेजोनेटर यूज़ कर रहे थे जहाँ हम एक्टिव मीडियम रख लेते हैं बीच में, और ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर हम क्या रख देते हैं, एक्टिव मीडियम रख लेते हैं, और जहाँ पे हमें फ्लैश लैम्प एंड ये जो पंप सोर्सेज हैं वो दिए जाते हैं. ओके. सो अगर हम ऑप्टिकल रेजोनेटर में हमने पढ़ा कि कैसे बनाया जाता है, अगर हम टू फ्लैट मिरर्स या फिर बाद में हमने कॉन्फोकल लेंसेज के कॉन्फोकल मिरर्स के बारे में भी पढ़ा था कि कॉन्फोकल मिरर्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाने के लिए. ओके. सो अगर हम उनमें से एक मिरर को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें. ओके. तो तब जो क्यू वैल्यू होगी, क्यू स्विचिंग जो होगी, दैट इज़ नॉट वेरी हाई when the one of the mirror is blocked. Okay. अगर एक मिरर को ब्लॉक कर दिया जाए तो Q जो वैल्यू होगी या Q स्विचिंग जो होगी वो दैट इज नॉट वेरी हाई. बट व्हेन द मिरर इज सडनली अनब्लॉक्ड, लेकिन अगर हम किसी जो मिरर जो ब्लॉक मिरर था, ठीक है, जिसको हमने ब्लॉक कर दिया था, उसको सडनली हम अनब्लॉक्ड कर दें तो Q इज स्विच्ड फ्रॉम लो टू हाई. तो Q वैल्यू जो है, जो Q वैल्यू है वो अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी. ठीक है. सो इट विल बी लो टू हाई. ओके. Thus a Q switched laser is one whose resonator can be switched from low quality to high quality and back again. Okay. So Q switched laser अगर आपसे पूछा जाए कि what is Q switched laser, तो हम कह सकते हैं कि जो Q switched laser है वो ऐसा लेज़र है और हाँ, जिसमें कि क्या है, जिसका कि रेजोनेटर, जिसके रेजोनेटर को लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी बनाया जा सकता है.
ठीक है, जिसका रेजोनेटर लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी का बन सकता है और फिर से वो लो क्वालिटी में जा सकता है. ओके, सो Q switched laser is one whose resonator can be switched from low quality to high quality and back again. Okay, so Q switched laser is this. And जो पल्स्ड ऑपरेशन जो हमने पल्स्ड जो लेज़र बना रहे हैं, पल्स टाइप लेज़र जो बना रहे हैं, पल्स वेव लेज़र, क्या उसको हम केवल क्यू स्विच से ही कर सकते हैं? सो आंसर इज नो. देयर इज टू स्टैंडर्ड टेक्निक्स. ओके, देयर आर टू स्टैंडर्ड टेक्निक्स. फर्स्ट इज द क्यू स्विचिंग एंड अनदर इज द मोड लॉकिंग. सो देयर आर टू स्टैंडर्ड टेक्निक्स. ओके, एक तो है क्यू स्विचिंग जो हम अभी पढ़ रहे हैं और दूसरी है मोड लॉकिंग. सो दीज आर द टू स्टैंडर्ड टेक्निक्स टू यूज for to it is used to pulsed operation of a laser. Okay, so pulsed operation के लिए, लेज़र के pulsed operation के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, Q switching and mode locking. so अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं Q switching. okay, so Q switching क्या है हमने पढ़ लिया कि Q switching क्या है and Q switched laser क्या है. so Q switched laser is one whose resonator can be switched from low quality to high quality and back again. Okay, thus a Q switching is used to generate pulses of high energy but nominal pulse widths in nanosecond regime, while the mode locking produces ultra short pulses with small energy content. So ये जो Q स्विच है ये पल्सेस को जनरेट तो करता है बट हाई एनर्जी की पल्सेस को जनरेट करता है एंड एक नॉमिनल रेंज होती है पल्स विड्थ की, नैनो सेकेंड जैसे रेजिमे है उसमें ये इन पल्सेस को जनरेट करता है. ओके, सो नैनो सेकेंड रेजिमे 10⁻⁻⁻⁹ -9 ठीक है, इस रेजिमे में जो है ये यानी कि इसकी पल्स विड्थ जो है वो क्या होती है, नैनो सेकेंड्स की रेंज में होती है. ठीक है, अब मोड लॉकिंग में आप आगे देखेंगे कि हम जो पल्स विड्थ है वो फेम्टो सेकेंड्स की, दैट इज -15 सेकेंड और एटो सेकेंड -18 सेकेंड्स, इनकी जो पल्स विड्थ है इतनी रेंज की पल्स विड्थ को भी जनरेट कर सकते हैं और एनर्जी कंटेंट उसमें कम होगा. ओके, सो मोड लॉकिंग इज यूज टू अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस, हम उनको कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस, जिसकी की पल्स विड्थ जो है वो फेम्टो सेकेंड्स में और एटो सेकेंड्स में होती हैं. ठीक है, सो दीज दोज pulses are called ultra short pulses. ठीक है, एंड क्यू स्विचिंग के थ्रू हम जो हैं वो शॉर्ट पल्सेस को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो ये ध्यान रखना कि क्यू स्विचिंग, दिस इज क्यू स्विचिंग रिलेटेड है शॉर्ट पल्सेस, यानी कि इससे हम शॉर्ट पल्सेस को जनरेट कर सकते हैं. एंड मोड लॉकिंग इज रिलेटेड विद अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस. ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस में कौन सी आती हैं, जो फेम्टो सेकेंड्स एटो सेकेंड्स, ये शॉर्ट पल्सेस में जैसे नैनो सेकेंड हो गया. ठीक है, ये पल्स विड्थ जो है वो इसमें आएंगी. ओके, सो द एनालिसिस ऑफ अ क्यू स्विच्ड लेजर इज एनालॉगस टू दी, ये मैंने आपको कल भी बताया था एग्जाम्पल कि क्यू स्विच्ड लेजर का जो एग्जाम्पल है वो हम किसकी तरह समझ सकते हैं, जैसे कि एक फ्लावर पॉट है. ठीक है, और इसमें एक होल है सपोज. ठीक है, और आप समझ लो कि वो आपने अभी नीचे रखा हुआ है ये फ्लावर पॉट. ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, वाटर डाल रहे हो.
ओके। अब अभी इसमें वाटर जो है, वाटर पानी इसमें पूरा भर जाएगा, ठीक है, जब तक आपने इस फ्लावर पॉट को उठाया नहीं। जैसे आपने इस फ्लावर पॉट को उठाओगे, ठीक है, ज़मीन से ऊपर उठाओगे, क्या होगा, ये जो छोटा सा यहाँ पर जो होल था उससे पूरा पानी किस तरीके से आएगा, ऐसे, ठीक है। अगर आप पहले जो है इस फ्लावर पॉट को पहले ही जो है ऊपर उठा के रखो और तब इसमें पानी डालो, तो इस होल से लगातार पानी इस तरीके से गिरेगा, ठीक है। बट अगर आप इसको ज़मीन में रखो, अगर इस फ्लावर पॉट को, और तब इसमें आप पानी डालो, ठीक है, तो ये पानी जो है इस, क्योंकि ये होल तो ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि ज़मीन पे है, ये होल ब्लॉक हो चुका है, इसलिए यहाँ जो पानी जो फिल होगा वो पानी, अगर मैं इस अब फ्लावर पॉट को अब उठा दूँ, पानी भर करके फिर उठा दूँ, तो ये होल से अचानक से एक जाइंट वाटर पल्स के रूप में निकलेगा, ठीक है। सो सिमिलर इन सिमिलर मैनर the analysis of the Q-switched laser is done. Okay, how in CW laser, that is in continuous wave laser, continuous wave laser की बात हो रही है, सिंपल जो लेजर होता है continuous wave laser, energy drains out of the population inversion as fast as it goes in, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी जो है वो आउट भी होती रहती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ एनर्जी स्टोर हुई, एनर्जी हमें पावर की फॉर्म में मिलती है, ओके। सो इन कंटिन्यूस वेव लेज़र एनर्जी ड्रेन्स आउट, एनर्जी जो है वो ड्रेन होती रहती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन एज फास्ट एज इट गोज ऑन, ये उसकी तरह आप समझ सकते हो, जैसे हमने बोला कि फ्लावर पॉट को अगर आप हाथ में उठा के रखो, उसमें एक होल भी है नीचे, और उसमें आप पानी डालते रहो, तो नीचे से कॉन्टिन्यूस एक धारा जो है वो बहती रहेगी उस होल के थ्रू, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस वेव लेज़र का एग्जाम्पल और एनालॉगस टू दैट फ्लावर पॉट। अच्छा, और अगर हम क्या करेंगे ना, क्यू स्विच्ड लेज़र लें, अगर हम क्यू स्विच्ड लेज़र की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि अब जो लेज़र आउटपुट मिलने वाला है वो पल्स्ड फॉर्म में मिलने वाला है। सो उसमें क्या होगा, वन ऑफ द मिरर्स इज ब्लॉक्ड, यहाँ देखो एक मिरर, ये मिरर है आपके, ये वाले मिरर हैं, ठीक है, ये मिरर है, एक मिरर, इस वाले मिरर को क्या कर दिया इन्होंने, ब्लॉक कर दिया, कैसे, ये एक कुछ शटर यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, तो ये ब्लॉक हो गया है। एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन दी पॉपुलेशन इन्वर्जन, और एनर्जी जो है यहाँ स्टोर हो चुकी है पॉपुलेशन इन्वर्जन के रूप में, ठीक है, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो चुका है, ठीक, बट आउटपुट कुछ नहीं है अभी, ओके। सो अंटिल द मिरर इज सडनली अनब्लॉक्ड, अब अचानक से हम अगर इस जो ये शटर था, इसको, ये शटर को रिमूव कर दें, ओके, तो क्या होगा, इट अलाउइंग द स्टिमुलेटेड एमिशन टू रिलीज द स्टोर्ड एनर्जी इन अ जाइंट पल्स, तो क्या होगा, ये स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो क्या होगी, एक जाइंट पल्स के रूप में बाहर निकलेगी, ओके। सो दिस इज डन इन द क्यू स्विचिंग, ओके। सो होता क्या इसमें अल्टीमेटली, कि अगर हम इस शटर को सडनली रिमूव कर दें, तो क्या होगा कि स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, ठीक है, और स्टिमुलेटेड एमिशन जब होगा, आपको पता है स्टिमुलेटेड एमिशन में मल्टीपल फोटॉन्स का क्या होता है, इमिशन होता है, तो मल्टीपल फोटॉन्स का इमिशन जब होगा, यानी कि वो इमिशन होगा मल्टीपल फोटॉन, यानी कि फोटॉन जो है वो मल्टीप्लाइड होते रहेंगे, ठीक है, यानी क्योंकि फोटॉन यहाँ अब क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, एंड राउंड ट्रिप के ये फोटॉन विल बाउंसिंग ऑफ between the between these two mirrors, ठीक है, एंड दे विल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ हियर। सो इस वजह से क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लेजर में कैसे एम्पलीफाई होती है लाइट, ठीक, तो वही एम्पलीफाई होगी लाइट, और फिर सडनली हमें क्या मिलेगा, एक जाइंट पल्स मिलेगी, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस सडन होती है क्योंकि हमने ये क्या करा है, ये जो शटर है इसको हटा दिया था, ठीक है।
इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसके थ्रू, ये डायग्राम के थ्रू कैसे क्यू स्विचिंग होती है। So if a laser cavity has a shutter, this laser cavity, this is the laser cavity, this and this is the shutter here. Okay, तो इस मिरर को हमने ब्लॉक कर दिया, इस वाले मिरर को कैसे, ये शटर लगा के, ठीक है। यानी यहाँ कोई फोटॉन्स नहीं जा पाएंगे, ना यहाँ से आ पाएंगे, ठीक है। आ पाएंगे कैसे, वो यहाँ से जब जा ही नहीं पाएंगे तो आ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो शटर को हमने यहाँ ब्लॉक, शटर से हमने इस मिरर को ब्लॉक कर दिया। ओके, सो इफ अ लेजर कैविटी हैज़ अ शटर एंड व्हेन द शटर इज क्लोज्ड, तो शटर को अगर हमने क्लोज कर दिया, चलिए शटर ऐसा है जैसे कि हम इसको क्लोज और ऑन एंड मतलब क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं इस शटर को, ठीक है। एंड देयर इज़ नो फीडबैक फ्रॉम दी मिरर, तो यहाँ जो ये जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है, यहाँ से कोई हमें फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लेज़र बीम डज नॉट बिल्ड अप हेयर, सो लेज़र बीम यहाँ पर बिल्ड नहीं होगी। एंड द एटम्स आर पम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, तो क्या होने वाला है कि क्योंकि कोई फीडबैक नहीं मिलेगा मिरर से, और ये हमने कल भी पढ़ा था कि हेयर मतलब क्यू स्विचिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका क्या है, अगर दो तरीके नहीं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को वो कर दें, रिमूव कर दें, पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्रिवेंट करें, या फिर हम जो है एक जो फीडबैक है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन को नहीं हमने रिमूव प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन तो इसके लिए नेसेसरी है लेजिंग एक्शन के लिए। बट हाँ, हम क्या कर सकते हैं, कुछ देर के लिए जो फीडबैक है मिरर से मिल रहा, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं, हम एक शटर लगा के, मिरर को ब्लॉक करके, ठीक। सो the atoms are pumped from ground state to higher excited state, पंपिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। और एटम्स क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, हायर स्टेट में, ठीक है। सपोज हमें नहीं पता 2 लेवल है, 3 लेवल है, जो भी है, 4 लेवल है, चाहे एटम्स जो है वो हायर स्टेट में जाते हैं ग्राउंड स्टेट से ड्यू टू थ्रू द पंपिंग प्रोसेस। ओके, एंड नो फीडबैक, देयर इज नो फीडबैक, सो नो स्टिमुलेटेड एमिशन। जब फीडबैक ही नहीं है तो स्टिमुलेटेड एमिशन भी नहीं होगा, ठीक है। फीडबैक कुछ है नहीं तो स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे होगा, हमें कोई फोटोन जब कोई आएगा ही नहीं इसको नॉक करने, अपर लेवल में जो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स बैठ गए उनको, सपोज यहाँ जो है ये लोअर लेवल है, ठीक है, ये लोअर लेवल है और ये एक्साइटेड लेवल है। मैं चलो इसको 1 मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ, चलो 3 मान लेते हैं या 2, सपोज ये है कोई लेज़र लेवल सिस्टम, ठीक है। एंड जो पंपिंग प्रोसेस है उससे क्या हो रहा है कि ये ग्राउंड स्टेट से एटम्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हायर स्टेट में, ठीक है। अब हायर स्टेट से सपोज इसकी जो है ये तो आपकी मेटा स्टेबल स्टेट, सपोज यहाँ सेकंड ये वाली है, तो यहाँ तो स्पॉन्टेनियस एमिशन तो होगा, ठीक है। बट यहाँ जब ये एटम आ जाएंगे, ठीक, ये जब एटम यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन करने के लिए, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए क्या चाहिए होगा, इसको एक्सटर्नल जो सोर्स चाहिए होगा इन एटम्स को, कहाँ, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इनको जो है कुछ एक्सटर्नल जो फीडबैक चाहिए, वो फीडबैक हमने क्या कर रखा है, प्रिवेंट करा हुआ है, ठीक है। सो स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जब नहीं होगा तो क्या होगा, पंपिंग प्रोसेस हो ही रही है तो एटम्स जो हैं वो कहाँ, यहाँ अकुमुलेट होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे,
और पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत बहुत हाई हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा बहुत हाई, तो फिर क्या होगा कि अगर हम उस मिरर को, अब जो हमने मिरर ब्लॉक किया था, यानी कि ये शटर जो क्लोज था, ये जो शटर क्लोज था, इसको अगर हम ओपन कर दें तो अचानक से फिर क्या होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत बहुत हाई हो चुका है, बहुत बहुत हाई हो चुका है पॉपुलेशन इन्वर्जन। यहाँ बहुत सारे आइटम्स आ चुके हैं, इनको यहाँ आना है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या होगा, एकदम से जो है बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, तो जो आउटपुट मिलेगा हमें वो एक पल्स फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि कुछ देर के लिए हमें मिलेगा, वो पल्स फॉर्म में मिलेगा। ओके, और वो एक जाइंट बीम होगी, बहुत जो है वो बहुत हाई इंटेंसिटी की बीम होगी। ओके, सो there is no feedback, there is no stimulated emission, and the population inversion keeps on building up. This value could be much higher uh, than the threshold inversion required for the same laser in the absence of the shutter. ठीक है, तो जो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू की बात कर रहे थे, पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है, जो नॉर्मल जब हम कोई शटर वटर भी नहीं लगाते, कोई हम ब्लॉकेज नहीं करेंगे मिरर में, तो तब भी अगर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन की, हाँ इतनी वैल्यूज़ जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन की होनी चाहिए, ठीक है, उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है जब अगर हम क्या कर दें, एक मिरर को ब्लॉक कर दें, ठीक है। तो population inversion has been built up to a large value, and the gain provided by the medium in one round trip will be much more than loss in one round trip. So क्योंकि population inversion बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो जो गेन मिलेगा हमें, ठीक है, यानी कि population inversion जो मिलेगा वो वन राउंड ट्रिप में, एक राउंड ट्रिप जो फोटोन एक राउंड ट्रिप लगाएगा, ठीक है, मिरर से एक राउंड ट्रिप में जो लगाएगा, that gain will be much more than the loss in one round trip. तो इस राउंड ट्रिप के दौरान जो हमें गेन मिलेगा वो इसके दौरान होने वाले लॉस से क्या होगा, बहुत बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। so gain will be very very greater than the loss, and as such the power of the laser beam would grow very quickly with every passage. so इस तरीके से हमें जो पावर है, लेज़र की पावर जो होगी, लेज़र बीम की जो पावर है, ये बहुत एकदम से बहुत क्विकली ग्रो करेगी विथ एवरी पैसेज ऑफ द राउंड ट्रिप ऑफ द फोटोन। ओके, एंड व्हेन द शटर इज सडनली ओपन, जब हम सडनली जो शटर ओपन कर देंगे, a huge light pulse gets generated and this technique is referred to as the Q switching. तो ये जो जैसे ही हमने शटर ओपन किया सडनली, तो हमें क्या मिलेगी, एक ह्यूज लाइट पल्स मिलेगी, ठीक है, और इसी टेक्निक को हम कहते हैं क्यू स्विचिंग। क्यू स्विचिंग बेसिकली क्या है, जब हम किसी भी एक मिरर को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो उसके दौरान जो होने वाला जो गेन होगा, जब उसके बाद जो गेन मिलेगा हमें, वो उसके एक ट्रिप में, एक राउंड ट्रिप में जो लॉस होगा उससे कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। और जैसे ही हम सडनली ओपन कर देंगे उसको, शटर को, तो एक जाइंट ह्यूज लाइट पल्स जिसे हम कह सकते हैं वो जनरेट होगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्यू स्विचिंग। ओके, so thus when the shutter is kept closed and suddenly opened, the Q of the cavity is suddenly increased from a very small value to a large value, and hence the name Q switching, ठीक है। Q switching, switch माने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, लो वैल्यू से कहाँ स्विच कर रहा है, हाई वैल्यू को, लो वैल्यू से हाई वैल्यू को। ओके, so Q of the cavity suddenly increased from a very small value to a large value, and hence the name Q switching. Okay.